तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। दिव्यजननी माँ परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। आज जो श्री अरविंद यूथ एसोसिएशन एनुअल स्टडी सर्कल माँ कृपा माँ श्री अरविंद कथा कि पढ़ार सुजोग मिलता माँ निकट में कृतज्ञता ज्ञापन कर। आम माँ बही से कथा अनेक बार पढ़ीचु जे जगत जहाँ कि घटे तार पश्चात भगवान तांकर शक्ति को आश्रय कर रही से जोग मायार आवृत आम पृथ्वी जो विवर्तन कथा देखू प्रकृत भगवान पश्चात रही सब कार्य कर आम भगवान को एक परिप्रकाश स्वरूप ए विवर्तन गोटे अंश विषय तेणु माँ से श्री अरविंद लिखिले जे भगवान ही साधक भगवान ही साधक प्रकृत भगवान ही साधना कर आम भितर से ही रही प्रकाश कर जो कार्य ताही ये चली आपको आउ टिके सूक्ष्म दृष्टि देखिले आम जापर जे प्रति क्षेत्र रे भगवान अवतार नहीं आसुचंती एवं आमको गोटे गोटे पहाच ऊर्ध को उठे तेणु आम मनीष अवस्था जो चेतना रहीचु ये भगवान माँ श्री अरविंद रूप आसी आमको आउ एक महत्तर चेतना को उठे ना चाहूँ जो चेतना की मनुष्य चेतना ठार आहरी महत्तर गभीरतर एक उच्चतर चेतना एवं यही उच्चतर चेतना को जीवाई सी ही आम भीतर रही साधना करते प्रश्न पचरा जदि भगवान ही साधक भगवान ही साधना ताले व्यक्तिर आवश्यकता कौन रही जदि भगवान सब कर मनुष्य को कौन कर आवश्यकता श्री अरविंद कहते जे जेते दिन पर्यंत व्यक्तिर निम्न प्रकृति कामना वासना एवं तार निम्न चेतनार परिवर्तन न होते दिन पर्यंत तार एक व्यक्तिगत प्रचेष्टार आवश्यकता अच्छे से आसी साधनार कथा जोगर कथा प्रचेष्टार कथा तपस्यार कथा से अनुभव सृष्टि अर्थात भगवान गोटे जो लीला स्वरूप जो निजर विवर्तन आगे चलती से गोटे स्वाधीनता दे आमको निजे भगवान करने साधनार स्वाद चखेवाई आमको प्रस्तुत करते तेणु प्रत्येक व्यक्ति जी भगवान को चाहूँगी वास्तव में सी चाहूनी ता भीतर भगवान चाहूँ तेणुक प्रकृत
ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚରା ହେବାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧକର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ତାର କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ହେବ ବା ତାର ଅନ୍ତର୍ଚେତନା କିଭଳି ହେଇପାରିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହେବା ଛଡ଼ା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ପାଇବେ? ଟୁ ବି ଫୁଲ୍ ୟୁନିୟନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଇନାଲ୍ ଏମ୍। ତେଣୁ ସେ ୟୁନିୟନ୍ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯେ ବାଧା ଦେଉଛି ତା ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ତରର ମନୋଭାବ। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର ପଚରା ହେଇଛି, ମା ଆପଣ ଆଶ୍ରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିକି ନ ରଖିକି ଏଇଭଳି ଯେଉଁମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ମା କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଟ୍ରୁ ସିନସିୟର ଖୋଜିବି ଆଉ ପ୍ରକୃତ ସାଧକ ଖୋଜିବି ତାହେଲେ ତମମାନେ କେହି ରହିବନି। ଅର୍ଥାତ୍ ମା କୃପା କରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ, କାରଣ ନୋ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ପରଫେକ୍ଟ। ତ ସେଇ ପରଫେକ୍ସନ୍ এই ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମା ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ମା କହିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ସାଧକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଆମେରିକା। ଯଦି ସିଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ହୋଲ୍ ତାଙ୍କ କନସିୟସନେସଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତ ମା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏକ ଇନର କ୍ୱାଲିଟି ଅନ୍ତର୍ଚେତନାର ଆଉ ଏକ ଅବସ୍ଥା କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ ହଉ, ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ ହଉ, ସେଥିରେ କେତୋଟି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଯେମିତି ଜଣେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାର ଅକ୍ଷର ଶିଖିବା ଅତି ଜରୁରୀ, ନହେଲେ ଶବ୍ଦଟିଏ ବି ଲେଖିପାରିବନି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଖୋଜୁ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆୟତ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ଯେମିତିକି ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ପିସ୍, କାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାନିମିଟି। ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାସ୍କର ଲେଲେଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ଥଟ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରିବ, ଏପରିକି କିଛି ଥଟ୍ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନବୀୟ ଚେତନା ରହିପାରିବ, ସେ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ତାହାକୁ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆୟତ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମାନବୀୟ ରୂପ ନେଇ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାଧାରଣ କଥା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଆମର ମୂଳଦୁଆ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଘରର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଉପରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଘର ଛିଡ଼ା ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଶାନ୍ତ ରହିବା, ଅଚଞ୍ଚଳ ରହିବା, ନୀରବତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା, ନିଶ୍ଚଳ ନୀରବତା, ଆମେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବହୁତ ଥର ଆମର ରାଣିଆ ପ୍ରାଚଣ୍ଡରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ନୀରବ କେମିତି ତାକୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମ ଭିତରେ ଏମିତି ଅନୁଭବ ଆସିବ ଯେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କେବେ ବି ହତୋତ୍ସାହିତ ହେବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବାକ୍ୟରେ ଏବଂ ବକ୍ତୃତାରେ ସହଜରେ କୁହାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ୟାକୁ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ଆଣିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସାଧନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଯେତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସେଇ ଘଟଣା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଶାନ୍ତ ରହିପାରୁଛୁ କି? ଏହି କଥାକୁ ଆମେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ କନସିୟସଲି ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛି ନା ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ୟାର କଥା ଭାବୁଛି। এই ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମ ପ୍ରିପାରେସନ୍ର, ଆମ ପ୍ରସ୍ତୁତିର, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି
जदि माँ को खोजुची माँ को विश्वास करुच्ची ताले ये जो विचलितता ये जो व्यस्तता ये अनुभवटा मोर कौट आस से कौन हम जे लिखुंट जो तुम काम एंड इक्वानिटी एंड डिवोशन ये जो अंतर भितर बढ़िया को आरंभ कर निश्चित भाव में जड़े स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को आरंभ कर सी अनुभव कर जे जो विषय मु किछि वर्ष तले बहुत व्यस्त हो जाउथि सामान्य टिके घटना रे जो थिरे मु विचलित हो जाउथि मते असुविधा लागुथिला सेही समान परिस्थिति रे मते वर्तमान किछि लागु अर्थात माँ कहते जे जदि तुम भितर शांत अनुभव तुम भितर प्रतिष्ठित होउछि स्वाभाविक भाव में तुम अनुभव करिवो जे तुम आगुर जहाँ थिल आज ताहा ना तेणु श्रीअरविंद कहते जदि योग साधनार बेस होची कौन परिस्थिति रे शांत नीरव और अचंचल हो रही द्वितीय जो कहते जे आम भितर गोटे भगवान को पाइबार गभीर आस्पिरेशन रहा दरकार तो जन माँ को प्रश्न पचार माँ जदि जनक भितर भगवान को पाइबार आस्पिरा नहीं ताहले सी कौन ये योग पथर अग्रसर हो पारनि ना कहले ना योग पथर अग्रसर हो पार किंतु आस्पृह सी मत डाकवा पड़ो जदि ता भीतर आस्पृह नहीं ही कैन ऑल्सो आस्पायर फॉर आस्पिरेशन जदि आस्पिरेशन नहीं सेटा मध्य ताकु दे दिए जीवो किंतु सी ताहा मध्य चाहिए दरकार तेणु जड़े प्रकृत में आस्पायर करुच्ची जड़े जदि वीक इन प्रोग्रेस इन साधना देन श्री अरविंद पचराई कैन ए पर्सन विथ ए वीक विल प्रोग्रेस इन साधना बाय आस्पिरेशन ओनली जदि आम भितर केवल आस्पृहता है किंतु इच्छा शक्ति से दृढ़ हो न मु भगवान को चाहूँगी किंतु भगवान को पाइबार जो प्रयास से प्रयास मो भीतर जागृत हो पार ताहले कौन मु योग पथर अग्रसर हो पारि श्री अरविंद कहले नो he must increase his willpower or call a higher power to do it for him अर्थात ये सूक्ष्मतर भाव में गोटे मूल सत्य को आम पाखे उद्भाषित कले कहले तमें कर तो साधना माँ को कह माँ तुम भाई साधना दिस इज व्हाट श्री अरविंद सेज जे प्रकृत में साधना कौन व्यक्ति करि जमती माँ को जड़े कहले माँ मुझे काम करने आश्रम जड़े आश्रम कहले मत ये काम करने बहुत भल लगुच तेणु मुझे काम करने माँ ताको गोटे उत्तर देली माँ कहले तमें काम कर किंतु साधनार आटिट्यूड नहीं काम कर ठीक समान कथा आउ जन साधक को उल्टा कहले सी कहले माँ मत ये कौन खाली काम दौरान मुझे 24 घंटा काम करी भगवान कथा भूलीगली आई हैव कम टू हियर फॉर साधना नॉट फॉर वर्क माँ ताको ठीक उल्टा कथा कहले माँ कहले यू डू माई वर्क सिंसियरली आई विल डू साधना कर तोहर साधना करिया दरकार नहीं मु तो जी कही से काम को तू सिंसियरली कर तो साधनार दायित्व मुझे अर्थात दीटा जाक कथा को आम सचेतन भाव में लक्ष्य करवा ताले आम आस्पृहार अवस्था को आम निजे जापर आम चाहूँ प्रकृत में भगवान को ही चाहूँ एवं माँ को काम माध्यम आम प्रकाश करूँ आम साधनार बेस जहाँ आधार ताहा ही आम कर्म हो तेणु दुईटी जाक अंगाअंगी भाग जड़ित और आमर अग्रगति आम साधनार अग्रगति ये कर्म अपरिहार्य तृतीय कहले जोटा कि गोटे इनर नीड सेटा हूँ निष्ठापरता गोटे जगह माँ कहले इफ यू आर नॉट सिंसियर डू नॉट बिगिन योगा डज दिस इम्प्लाई दैट इफ आफ्टर एंटरिंग योगा ए पर्सन फाइंड्स दैट हिज सिंसियरिटी इज नॉट कंप्लीट ही शुड लीव इट जड़े साधक प्रश्न पचार माँ तो कहले जदि तुम सिंसियर ना ताले योग साधना आरंभ करनी
ताहले आमे प्रकृत रे जो माने सिंसियर नो से माने योग साधना रे बाहर जो माँ कहले श्री अरविंद तार प्रश्न उत्तर देले से कन्फ्यूजन कहले नो नो इट इज ओनली ही इज फंडामेंटली इनसिंसियर दैट ही शुड लिव इट बर्तमान यार उत्तर आमे बुझिबा टिके क्लिष्ट हुए जे प्रकृत रे फंडामेंटल इनसिंसियरिटी कौन आमर लेखार गोटे जगह रही सेंट्रल सिंसियरिटी तो या बाबाजी महाराज तक ग्रंथवली गोटे जगह सरल भाव में बुझे जदि से कथा को आम अवलोकन करूँ ताल आम देखिपर हुए तो आम भितर संपूर्ण भाव में निष्ठापरता न थी पारे ये तो साधारण कथा कारण हठात जड़े व्यक्ति साधना पथरे दिने दिनक जाए पूरा निष्ठापर हो सबकि को पूर्ण निष्ठापर जो कर तो सहजर संभव नुहे किंतु जदि इफ यू आर फंडामेंटाली सिंसियर अर्थात आपड़ जदि अनुभव कर माँ मोर जीवन आसी माँ को कार्यपाई एठारे उपस्थित अच्छी यही योग साधन कार्य मत निश्चित भाव में करार अच्छी जन्म करार अच्छी मु सिंसियर न हो पारे जदि फंडामेंटाल सिंसियरिटी मो अनुभव भितर अच्छी ताहले श्री अरविंद कहते निश्चित भाव में तुम भितर से निष्ठापरता धीरे 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 समयानुक्रमे वृद्धि पाए और शेष कहते जे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जहाँकि माँ को चरण रे जदि तुम सबकि को समर्पण कर दे पार जदि ये अनुभव रखिपर जे माँ मु जहाँ किसी भी करुँची मु जो योग साधना हो कि मोर कर्म हो सबकि मु तुम चरण रे समर्पण करुँची यही समर्पण भावटा ही कौन कर ना आमर साधनार प्रकृत मनोभाव को बढ़े दे पार जो इनर क्वालिटी दरकार ताहा यही समर्पण माध्यम ही अधिक तीव्र और अधिक व्यापक एवं मुझे विश्राम नेबी धैर्य सहित समस्त शुणी मो माँ निकट में आप निकट में